আলাইকুম ভিউয়ার্স। আসলে আজকে আমি অনেক খুশি। আসলে আজকে না, অনেক সময় আমি দেখেছি বিভিন্ন বিদেশি গণমাধ্যম যেমন পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা ইন্ডিয়া, আরও বিদেশি যারা গণমাধ্যম আছে, এরা আসলে অনেক সময় অনেক ইনফরমেশন এবং অনেক ভালো প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করে সবাইকে দেখার সুযোগ করিয়ে দেয়, যেটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে, পাকিস্তান বাংলাদেশের যে যুদ্ধটা হয়েছিল 1971-এর। আসলে এগুলো দেখে তখন ভালোই লাগে যে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা যতটুকু না জানি তারা তার থেকে বেশি ভালো জানে বিদেশি গণমাধ্যমগুলো। আর আমাদের দেশের গণমাধ্যম যেগুলো আছে সেগুলো তো কেমন আপনারা সবাই জানেন। তো আমি এসব বিষয়ে কোনো কিছু বলবো না, তর্কে যাব না। আমি তর্ক পছন্দ করি না এবং আমি কোনো রাজনীতির সাথেও জড়িত না। জাস্ট বিষয়টা আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, যার কারণে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তো ভিউয়ার্স, আমি যেটা আজকে দেখলাম যে ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত লেখক এবং মিউজিক ডিরেক্টর মনোজ মুনতাসের স্যারের একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখে খুবই ভালো লাগলো। এই জন্য আমি আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো ভিডিওটি আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে, তো যার কারণে আমি আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতেছি। আসলে এইসব ইনফরমেশন এদের কাছে আছে। তো আসলে আমি সবসময় প্রাউড ফিল করি যে আমি একজন বাংলাদেশি, গর্বিত বাংলাদেশি। তো এই প্রামাণ্যচিত্রটি দেখার পরেও আশা করি আপনারা আগে যতটুকু গর্বিত মনে করতেন তার থেকে বেশি ভালো গর্বিত মনে করবেন। তো আর কথা বলবো না, চলুন মূল ভিডিওটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো যাবার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ, যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর যদি এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো মন্তব্য বা কমেন্ট থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এই চ্যানেলটি এখন পর্যন্ত যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন, সাথে থাকা অল নোটিফিকেশন বাটনটি অন করে রাখুন, যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিও আপনি মিস না করেন। তো আরও একটি অনুরোধ করছি, ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করেন যেন এই ইনফরমেশনটি সবাই দেখতে পারে। আর যারা হিন্দি বোঝেন তাহলে তো আরও কোনো কথাই নেই। তো এটা আসলে প্রামাণ্যচিত্রটি হিন্দিতে, তো হিন্দি যারা বোঝেন তারা অনেক ইনফরমেশন পাবেন বাংলাদেশের বিষয়। ढाका आजाद देश की आजाद राजधानी है। 16 दिसंबर 1971 इस ऐलान से दुनिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पाकिस्तान, जो इससे पहले भारत के पश्चिमी किनारे और पूर्वी किनारे पर था, वो दो हिस्सों में बंट गया, विभाजित हो गया और एक नया आजाद मुल्क पैदा हुआ, आजाद बांग्लादेश। सवाल ये उठता है कि 1971 में वो लड़ाई जो हमने पाकिस्तान से लड़ी थी, वो सिर्फ बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए लड़ी थी या फिर पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांटने के लिए लड़ी थी, या इसके पीछे कोई और भी मकसद था? अगर था तो आज 52-53 साल बाद क्या यह मकसद पूरा हो पाया? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के जन्म की और बांग्लादेश के मौजूदा हालात की, क्योंकि बांग्लादेश की बात किए बगैर भारत के 75 सालों की बात अधूरी रह जाएगी। ये एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश के आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। 21वीं सदी में अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी है। साल 1971 में जब बांग्लादेश बना तब ऐसा माना गया कि वो ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकेगा। खासतौर पर पाकिस्तान को उम्मीद थी कि बांग्लादेश आर्थिक तौर पर फल फूल नहीं पाएगा और खुद ही झुककर पाकिस्तान में विलय की बात करेगा। लेकिन जो बांग्लादेश जन्म के समय वेंटिलेटर पर कहा जा रहा था, वो आज विकास की राह पर दौड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान मजहबी कट्टरता और आतंकवाद के चक्रव्यूह में फंसकर आईसीयू में पहुंच चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तरक्की से लेकर मानव सूचकांक यानी बेहतर जीवन स्तर तक हर पैमाने पर
बांग्लादेश ने पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है। 189 देशों के मानव विकास सूचकांक सूची में जहां पाकिस्तान 154 नंबर पर है, वहीं भारत 131 और बांग्लादेश 133वें स्थान पर है। विश्व बैंक की जून 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है। बांग्लादेश पर टाइम मैगजीन की 1971 की रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान एयरलाइन ने बांग्लादेश छोड़ा, उस वक्त पोर्ट सिटी चटगांव के उसके अकाउंट में सिर्फ $16 यानी 117 रुपए थे। लेकिन आज बांग्लादेश के पास 3,44,000 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार है। इतना ही नहीं, $1 के मुकाबले जहां पाकिस्तानी रुपए का मूल्य 208 रुपए है, वहीं बांग्लादेश के 93% $1 के बराबर है। इन आंकड़ों का सीधा मतलब यह है कि भारत की मदद से पाकिस्तान से आजाद होने वाला बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की पटरी पर भारत से भी ज्यादा तेज रफ्तार पकड़ चुका है। 50 साल पहले जिस बांग्लादेश के पास पेट भरने के लिए अनाज तक नहीं था, उसकी तरक्की आज दुनिया को हैरान कर रही है। वहीं पाकिस्तान को शर्मिंदा और परेशान। 1947 में दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर उभरा था पूर्वी पाकिस्तान, जो देश के बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान का एक हिस्सा था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान की उम्र ज्यादा लंबी हो नहीं पाई। 24 साल बाद ही पाकिस्तान के इस हिस्से का किस्सा तमाम हो गया और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बदल गया। लेकिन यह बदलाव, यह तब्दीली अचानक नहीं आई थी, ना ही यह बदलाव कुर्बानियों के बिना हुआ। लाखों लोगों ने जानें गंवाई, तब बना बांग्लादेश, जिसे सबसे पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता भारत ने दी। सदियों की गुलामी के बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इस तरह दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। 1947 के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली अस्मिता और स्वायत्तता के मुद्दे को लेकर जातीय संघर्ष शुरू हो गया था। 1971 आते आते ये संघर्ष अपने चरम पर था। पाकिस्तानी सेना पर अत्याचार के आरोप लग रहे थे और उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे सैन्य तानाशाह याहिया खान की पूर्वी पाकिस्तान पर पकड़ पूरी तरह छूट चुकी थी। I think any government which would like to persecute their own people is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. As you know, the problem is not an Indo-Pakistan problem. The problem is between the military regime of West Pakistan and the people and the accepted elected representatives of the people of Bangladesh. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में नया मोड़ तब आया जब 1971 में दोनों देशों के बीच तीसरी जंग हुई और फिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये वो तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद रह गई। भारत की सेना ने सिर्फ 14 दिनों में पाकिस्तानी सेना को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत किए थे और फिर इसी के बाद दुनिया के नक्शे पर वजूद में आया था बांग्लादेश। बांग्लादेश के बनने की यह कहानी अपनी जगह है, लेकिन आज के भारत के सामने अहम सवाल यह है कि क्या इससे हमारी मुश्किलें कम हुई हैं? 1971 की जंग के बाद हमने पाकिस्तान के नक्शे को तो बदल दिया, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? आजाद भारत के 75 साल के सफर में आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह जानना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश आज हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, तो वहीं पाकिस्तान हमें आतंकवाद की आंखें दिखा रहा है। हमें याद रखना है कि व्यापार और उद्योग में
जहां हमारे लिए एक जैसी संभावनाएं हैं, तो आतंकवाद जैसे समान खतरे भी हैं। जो सोच और शक्तियां इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देती हैं, वो अब भी सक्रिय है। हमें उनसे सावधान भी रहना चाहिए और उनसे मुकाबला करने के लिए संगठित भी रहना होगा। 1971 के युद्ध में शर्मनाक सरेंडर के बावजूद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानने में 2 साल लगा दिए। 10 जुलाई 1973 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश स्वीकारने वाला प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को कभी दिल से स्वीकार नहीं कर सका। करीब 40 साल बाद दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हुए जब 2013 में बांग्लादेश में जमात इस्लामी के नेता अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दी गई। 2015-16 में भी टेरर फंडिंग को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव रहा। अगर 1971 को ही पैमाना माना जाए तो भी दोनों देशों के बीच फर्क साफ नजर आता है। पाकिस्तान की प्राथमिकता जहां एटम बम और आतंकवाद रहा, वहीं बांग्लादेश का फोकस विकास रहा। बेरोजगारी घटाने, निर्यात बढ़ाने, लोगों का जीवन स्तर सुधारने पर जहां बांग्लादेश ने जोर दिया, वहीं सैनिक तानाशाही के चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान चीन का मोहताज बन गया। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 76,817 करोड़ रुपए है, वहीं बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 3,33,000 करोड़ रुपए है। साल 2021 में पाकिस्तान का निर्यात लक्ष्य 2,99,000 करोड़ रुपए है, वहीं बांग्लादेश का निर्यात लक्ष्य 4,11,000 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश ने 50 सालों में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो कुछ हासिल किया है, पाकिस्तान उसका बस ख्वाब ही देख सकता है। आज भी पाकिस्तान को अपना 2 हिस्सों में बंट जाना चुभ रहा है। आज भी वो उस जख्म को सहला रहा है जिसका नाम है पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस दर्द का अंदाजा इसी से हो जाता है कि बांग्लादेश को मान्यता देने में उसने 4 साल लगा दिए। आज भी बांग्लादेश के वजूद को वो पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। बांग्लादेश और भारत की दोस्ती भी उसकी आंखों में किसी कांटे की तरह खटकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबार का रिश्ता भी बेहद मजबूत रहा है, वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच इस रिश्ते में भी दरार है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 100 संधियां हो चुकी हैं। हालांकि पानी के बंटवारे और सीमा पर होने वाली हत्याओं जैसे मुद्दों का समाधान निकालना अभी बाकी है। खास बात यह है कि भारत बांग्लादेश को एक छोटा नहीं बल्कि बड़ा देश मानता है जो तेजी से तरक्की कर रहा है, और बांग्लादेश की इस काया पलट का राज उसके एक्सपोर्ट यानी निर्यात में छुपा है। आजादी के समय जिस बांग्लादेश के सामने खाने का संकट था, आज वो रेडीमेड गारमेंट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को बांग्लादेश बड़े पैमाने पर झींगा, जूट, चमड़े का सामान और चाय भी बेचता है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में बांग्लादेश ने 34% ज्यादा यानी करीब 4,11,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है, जिसमें रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री का करीब 84% योगदान है। पिछले 10 साल में बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट 2 गुना हो चुका है। साल 2011 में यह करीब 1,11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019 में 2,52,000 करोड़ रुपए का हो गया। बांग्लादेश में कपड़ा कारोबार से करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, और अब बांग्लादेश भारत के बंगलुरु बनने की राह पर है। करीब 10 साल में यहां करीब 40% वार्षिक दर से आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखी जा रही है। यहां करीब 4,500 सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और स्थानीय आईटी सेक्टर की वैल्यू करीब 8,300 करोड़ रुपए है। सीमा से जुड़े कुछ छोटे मोटे विवादों को अगर छोड़ दें तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और संपर्क दोनों ही दोस्ताना रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमाओं पर भी शांति है,
लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सरहदें आज भी सुलग रही हैं। मोहब्बत और नफरत, दोस्ती और दुश्मनी से लेकर कारोबार और बहिष्कार तक तीनों देशों का सफर आज जिस मकाम तक आ पहुंचा है, उससे आगे की राह क्या हो सकती है? आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। कोशिश पूरी करी जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के जो व्यापारिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। पर मुझे लग रहा है इसमें जो केवल और केवल एक विलेन है वो चाइना है। चाइना ने वहां पर $1 बिलियन से भी ज्यादा की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी हुई है और चाइना भारत के आसपास के सब इलाकों को अपने ऊपर निर्भर कर देना चाहता है, आर्थिक रूप से उनको अपंग कर देना चाहता है। तो मुझे लग रहा है बांग्लादेश अगर अपने आप को इस चीन के लुभावने एग्रीमेंट से और चेकबुक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, अगर उससे बचा के रखेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हो सकते हैं। जीडीपी के बढ़ने से समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, इकोनॉमिक समस्याओं का, और वो भारत, चाइना और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों की तरफ भी देख रहे हैं और वो वहाँ से भी निवेश बहुत सी कंट्रीज़ का उनके आ रहा है। और मैं समझता हूँ भारत का एक बड़ा रोल है। अगर भारत वहाँ पे अपना निवेश करे तो बहुत सी समस्याएं उनकी हल हो सकती हैं और इकोनॉमिक कॉपरेशन जितना बढ़ेगा उतने ज़्यादा संबंध भी बढ़ेंगे। पाकिस्तान से तीसरी जंग के बाद भारत ने तेज तरक्की का रास्ता अपना लिया। बांग्लादेश ने भी खुद को संभाला और संवारा है, लेकिन पाकिस्तान वो आतंकवाद के बिछाए हुए अपने ही मकड़ जाल में उलझ के रह गया है।